بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت چہارم تھرڈ ٹرم میں مضمون اردو، سبق کا نام احسن کی عید۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 143، 144، 145 اور 146 پر موجود ہے۔ سبق کا نام ہے احسن کی عید۔ خاص الفاظ ہیں بچوں: قصاب، تہوار، محروم، رنگین، ضعیف۔ خاص الفاظ ہیں قصاب، تہوار، محروم، رنگین، ضعیف، اور ان کے معنی ہیں ان خاص الفاظ کے۔ قصاب کا مطلب ہے کسائی۔ قصاب کے معنی ہیں بچوں کسائی۔ تہوار، خوشی کا دن۔ تہوار، خوشی کا دن۔ محروم، جسے کچھ میسر نہ ہو۔ محروم، جسے کچھ میسر نہ ہو۔ رنگین، رنگ دار۔ ضعیف، بوڑھے۔ قصاب، کسائی۔ تہوار، خوشی کا دن۔ محروم، جسے کچھ میسر نہ ہو۔ رنگین، رنگ دار۔ ضعیف، بوڑھے۔ اب بچوں ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اسے میں 2 دفعہ پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں گے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سحر کروانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ بچوں اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی موجود تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سحر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے جو اپنے گھر سے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے۔ احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ حمید صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکرے کی تعریف کی۔
एहसन ने पूछा, हमीद साहब, आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए मेरे पास बकरा खरीदने के पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर एहसन घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में एहसन यही सोचता रहा कि हमीद साहब और उनकी बीवी ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। अगले 2 दिन में एहसन बकरे से इतना मायूस हो गया कि उसका जी चाहा कि अब्बू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आए। जब उसने उस ख्वाहिश का जिक्र अपने अब्बू से किया तो वो मुस्कुरा कर बोले, एहसन, तुम्हें तो मालूम है। दोबारा पढ़ते हैं बच्चों से हम इस सफ़े को। चलते चलते उसे हमीद साहब नजर आए, जो अपने घर से बाहर कुर्सी बिछाकर बैठे हुए थे। हमीद साहब एक ज़ईफ आदमी थे। वो अपनी बीवी के साथ एहसन के मोहल्ले में रहते थे। एहसन बकरा लेकर हमीद साहब के पास पहुंचा और अदब से उन्हें सलाम किया। हमीद साहब मुस्कुरा कर मिले और एहसन के बकरे की तारीफ की। एहसन ने पूछा, हमीद साहब, आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए मेरे पास बकरा खरीदने के पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर एहसन घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में एहसन यही सोचता रहा कि हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। अगले 2 दिन में एहसन बकरे से इतना मायूस हो गया कि उसका जी चाहा कि अबू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आए। जब उसने इस ख्वाहिश ख्वाहिश का जिक्र अपने अबू से किया तो वो मुस्कुरा कर बोले, एहसन, तुम्हें तो मालूम है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह उन्हें उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा कि उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल ज़ुहा मनाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुम्हें भी अपने बकरे की कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। ईद का दिन आया तो एहसन ने नमाज के बाद कसाब के आने का इंतजार शुरू कर दिया। एहसन बेचैनी से घड़ी की तरफ देखता रहा। जब कसाब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत से बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने एहसन को प्यार से समझाया, एहसन, ईद खुशी का त्यौहार है, इस पर उदास नहीं होते, बल्कि सबकी खुशियों में शरीक
करते हैं। ये सुनते ही एहसन ने बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। बाजी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, हम उनके साथ वक्त गुजार कर उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर उनकी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। एहसन हमीद साहब के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। बच्चों, इसे हम दोबारा पढ़ते हैं कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह उन्हें उनके बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा कि उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए ईद उल अज़हा मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुम्हें भी अपने बकरे की कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। ईद का दिन आया तो एहसन ने नमाज के बाद कसाब के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया। एहसन बेचैनी से घड़ी की तरफ देखता रहा। जब कसाब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत से बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने एहसन को प्यार से समझाया, एहसन, ईद खुशी का त्यौहार है, इस पर उदास नहीं होते बल्कि सबको खुशियों में शरीक करते हैं। ये सुनते ही एहसन ने बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। बाजी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, हम उनके साथ बोली हम उनके साथ वक्त गुजार कर उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर उनकी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। एहसन हमीद साहब के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर में बाजी और हमीद साहब की बेगम खाना तैयार करके ले आईं। सब ने मिलकर खाना खाया। आज काफी दिनों बाद हमीद साहब और उनकी बेगम बहुत खुश लग रहे थे। एहसन को अपना बकरा पसंद तो बहुत था, लेकिन जो खुशी उसको हमीद साहब को खुश देखकर हो रही थी, वो बकरे के साथ खेल कर मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा थी। दोबारा पढ़ेंगे बच्चों से हम। थोड़ी देर में बाजी और हमीद साहब की बेगम खाना तैयार करके ले आईं। सब ने मिलकर खाना खाया। आज काफी दिनों बाद हमीद साहब और उनकी बेगम बहुत खुश लग रहे थे। एहसन को अपना बकरा पसंद तो बहुत था, लेकिन जो खुशी उसको हमीद साहब को खुश देखकर
हो रही थी वो बकरे के साथ खेल कर मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा थी। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के अल्फाज मैनी दोबारा से पढ़ेंगे। कसाब, कसाई। त्योहार, खुशी का दिन। महरूम, जिसे कुछ मयसर ना हो। रंगीन, रंगदार। ज़ईफ, बूढ़ा। एक बार बच्चों दोबारा से पढ़ते हैं। पहले हमने सबक के शुरू में इन अल्फाज की मैनी पढ़े थे और अब इसे दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको ये अल्फाज अच्छी तरीके से और इनके मैनी याद हो जाएं। कसाब, कसाई। त्योहार, खुशी का दिन। महरूम, जिसे कुछ मयसर ना हो। रंगीन, रंगदार। ज़ईफ, बूढ़ा। प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आपकी किताब का सफ़र नंबर 143, 144, 145 और 146। इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है और इन अल्फाज के मैनी को याद करना है। जो मुश्किल अल्फाज आपकी किताब में दी हुई हैं, जिनके मैनी हमने आपको याद करवाए हैं, इनके मैनी को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज।